Good morning, children. This is class 5 and social studies. And today's video, I am discussing chapter number 3. And we had in the last Zoom class, I had just started this lesson, the Iron Age. That is chapter number 3 on page number 22. So I had taken a small part of it in Zoom, as it is shown here also. I had written on 29th, that was Saturday. And for today, Monday, I am taking from that part where I had left that day. I had stopped. I had ended the Zoom class. Okay. So in that part, in the beginning, we had started studying about the Iron Age. After the Stone Age, this in chapter number 3, we will study about the Iron Age and how was iron developed. These 2 points are on page number 22, and some part of page number 23 I had discussed after seeing these tools of iron and all. Until here I had discussed in Zoom class. All those who had attended the class on Saturday must be knowing where I had taken, from where I had taken the lesson and from where I had entered the lesson. So today's video I will be taking from here where I had ended the lesson on that day. Okay. Now, why iron was preferred over bronze? Because in this previous part we had come to know that the people of that time had started making the tools and weapons of the iron, and iron has taken place of the bronze. Now we will see why iron was preferred over bronze. Okay, हम ये देखेंगे अब इस पार्ट में कि उस टाइम के लोगों ने, the old people had preferred to make the use of iron. Okay, we will see the reasons why they had started, why they preferred. Okay, so from here I am starting. Okay, now why iron was preferred over bronze? I am reading from here. During the Iron Age, the best tools and weapons were made from steel. और आयरन एज में स्टील के वेपन्स तो बनने लगे, तो लोहे के वेपन्स बनने लगे थे. एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ आयरन विद कार्बन कंटेंट्स. और लॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स वी कैन से, और मेटल्स consisting of iron and with carbon contents. Okay, steel weapons and tools were nearly the same weight as those of bronze, but stronger. Why the people started preferring and gave preference to the iron? Because the weight was same almost, but the tools of the iron were more stronger. The weapons or tools of the iron were more stronger than the bronze. Okay. However, steel was difficult to produce with the methods available. लेकिन उस टाइम में क्या था कि स्टील के टूल्स और स्टील के वेपन्स बनाना जो था थोड़ा सा मुश्किल था. बिकॉज जो मेथड्स आज के इन द मेथड्स विच इज यूजिंग इन द प्रेजेंट टाइम और आफ्टर दैट टाइम वो अवेलेबल नहीं थे. सो देयर फॉर मैनी आयरन एज टूल्स वर डिज़ाइंड ऑफ रॉट आयरन. और हम लोग इसको कह सकते हैं कि देयर फॉर इसीलिए आयरन एज के कुछ टूल्स जो थे वो इस तरह के डिज़ाइन किए गए जो कि थोड़ा सा कच्चे और थोड़े हल्के टाइप के लोहा के, जैसे रॉट आयरन इज थोड़ा कच्चा लोहा और थोड़ा हल्का, है ना, नॉट सॉलिड, वेरी टफ स्टील. सो चिल्ड्रन, रॉट आयरन जो है वो उतना हल्का लोहा थोड़ा होगा कहलाता है, और इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि उसको बिल्कुल मेल्ट करके जैसे हार्ड स्टील बनाया जाता है, वो नहीं था वो. ठीक है. रॉट आयरन इज़ वीकर देन ब्रॉन्ज. और रॉट आयरन जो था वो ब्रॉन्ज से भी वीक था, बट बिकॉज इट वॉज लेस एक्सपेंसिव एंड मोर ईजिली शार्पेंड, पीपल यूज इट एनीवे. लेकिन लोगों ने उसको यूज़ क्यों किया ब्रॉन्ज की जगह?
हालांकि वो उतना वो नहीं था उतना, इट वॉज नॉट एज सॉलिड एंड एज हार्ड एज ब्रॉन्ज, बट बिकॉज इट वॉज लेस एक्सपेंसिव, आयरन वॉज लेस एक्सपेंसिव. Iron is cheaper even in today's today's modern time. Iron is, yes, cheaper than the bronze. Bronze is more expensive nowadays also. अभी भी in the present time it is true, and more easily sharpened. और आसानी से वो उसको फ्लैट करना, ठोक पीट के बनाना, मतलब इसको गिविंग एनी न्यू शेप दैट वाज ईजियर फॉर आयरन. पीपल यूज इट एनी वे, और फिर इसलिए लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया. ना वी कैन सी थिंग्स मेड ऑफ आयरन. आप यहाँ देख सकते हैं ये टेबल टाइप टेबल है, अभी भी बनते हैं इस तरह की चीज़ें. सम फर्नीचर्स ऑफ द आयरन आर मेड. स्टील फर्नीचर उसको बोलते हैं, नॉट आयरन, स्टील बोलते हैं उसको हम लोग. नाउ आयरन इज बाई इटसेल्फ एंड एडिक्वेटली स्ट्रॉन्ग मेटल विदाउट एडिशनल अलॉयस. और आयरन जो है वो अपने आप में ही अकेला ही इतना स्ट्रॉन्ग मेटल है कि उसमें ज़रूरी नहीं कि दूसरे मेटल्स उसमें उसको हार्ड बनाने के लिए यूज़ किए जाएं. ठीक है. ब्रॉन्ज ऑन अदर हैंड रिक्वायर्ड कॉपर एंड टिन विच आर लेस कॉमन देन आयरन. लेकिन ब्रॉन्ज वाला मेटल बनाने के लिए उसमें कॉपर और आयरन को मिलाया जाता था. दो मेटल्स को मिला के ब्रॉन्ज तैयार होता है, कॉपर एंड आयरन. ठीक है. कॉपर एंड टिन, ओके, विच आर लेस कॉमन देन आयरन. और आयरन में ऐसा नहीं है, वो अकेला ही अपने आप में सॉलिड है. एडिशनली आयरन कैन बी शार्पेंड बाई ग्राइंडिंग वेयर एज ब्रॉन्ज मस्ट बी रीफॉल्ड. और आयरन को किसी भी तरह से उसको शार्प किया जा सकता है. ग्राइंडिंग कह सकते हैं उसको एक तरीके से, मशीन में डाल के या उस तरह से ग्राइंडिंग, मतलब उसको ठोक पीट के करके. और जबकि ब्रॉन्ज को ऐसा नहीं कर सकते, इट विल ब्रेक. अगर उसको करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. देन आयरन एज इनोवेशंस. अब आयरन एज में क्या क्या नई चीज़ें हुई ये हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे. सम मोर विल ऑल्सो कम ऑन द नेक्स्ट पेज. पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 23. आयरन एज इनोवेशंस. आयरन एज पीपल डेवलप सम वेरी यूजफुल. इनोवेशन का मीनिंग हम यहाँ बता सकते हैं, एक तरह से इन्वेंशन कह सकते हैं कि जो नई चीज़ें आईं. इन्वेंशन वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स. आयरन एज पीपल डेवलप सम वेरी यूजफुल टूल्स टू हेल्प देम इन देयर डेली वर्क. अब जब आयरन एक बार आ गया तो उसको डिफरेंट यूजेस अपने डेली यूज़ में किया, कैसे कैसे डेली वर्क में. रोटरी, देन फॉर एग्जांपल नंबर 1, अ रोटरी क्वेर्न. QUERN क्वेर्न. रोटरी माने जो गोल गोल घूमे, उसकी बात कर रहे हैं. द रोटरी क्वेर्न was used to grind grain into flour. It was made from two flat stones, but one on top of the other. ये क्या था? ये एक तरह से हाथ की चक्की है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि 2 पत्थरों से बनाई गई थी और उसमें एक के ऊपर एक. आप पहले पुराने समय में लोग उसी तरह से ही घर में अनाज पीसा करते थे. ये जो मॉडर्न बिजली से चलने वाली चक्की होती है, आटा पीसने की चक्की, गेहूँ पीसने की, और ऑयलिंग और ये सब नहीं होती थी, और ऑयल निकालने की. ग्रेन वॉज पोर्ड इन टू ए होल इन द अपर स्टोन. और ऊपर के स्टोन में एक अंदर होल होता था और उसमें से दाना गेहूं का, अनाज का डाला जाता था. द टॉप स्टोन वॉज देन टर्न्ड ऑन ए हैंडल. और ऊपर वाले स्टोन जो था वो फ्लैट स्टोन इन राउंड शेप, उसके ऊपर रख के, और उसमें एक हैंडल होता था. बिकॉज ऑफ द लोअर स्टोन डिड नॉट मूव, सो द ग्रेन वॉज क्रश्ड बिटवीन द 2 स्टोन्स. और क्योंकि उसको गोल ऐसे करके घुमाया जाता था हैंडल से. आई विल शो यू द फोटोग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज. तो वो जो नीचे का पार्ट तो घूमता नहीं था, तो वो गोल घूमने से वो जो ग्राइंड होता था, जो ग्रेन होता था, वो पिस के, बिकॉज द बोथ ऑफ देम वर हार्ड स्टोन्स. ग्रेन वॉज क्रश्ड बिटवीन द 2 स्टोन्स. द रोटरी क्वेर्न मेड ग्राइंडिंग फ्लोर मच क्विकर एंड ईजियर देन बिफोर. और ये बनने के बाद लोगों के लिए आसान हो गया कि वो ग्राइंडिंग कर सकें और गेहूँ से जैसे ग्रेन जो भी हैं उसका आटा बना लें पीस के. चलिए आई कैन शो यू द फोटोग्राफ ऑन दिस न्यू पेज. दैट इज़ पेज नंबर, दिस फोटोग्राफ इज़ हियर ऑन पेज नंबर 24.
You can see this woman using. आपके घर में अब now these days this system is not available, because in the olden time every house had this sort of thing in the house. Ladies used to do lot of labor to do all that. आप पूछिएगा, you ask your grandparents that they must have seen or they must have kept this in their house in their young age. Okay, so children, some more part of it I can tell you. Number 2, iron making tools. अब tools किस तरह से बनते थे? The iron age ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं? लोहार को, जो कि लोहे का सामान बनाता है. मेड स्ट्रॉन्ग सोर्ड्स बाई हीटिंग ए बार ऑफ आयरन ओवर ए चारकोल फायर. चारकोल की कोयले की भट्टी जला के क्या करता था, एक बार को उसके ऊपर एक रॉड को गर्म करता था. मतलब इट बिकम्स हॉट रेड when it is kept on the fire. When the iron was white hot, और जब वो एकदम ब्लैक कलर का आयरन होता है तो वो गर्म होकर एकदम फिर वो उसके बाद वो वाइट कलर में चेंज होने लगती थी. द स्मिथ रेस्टेड द बार ऑन एन एनवल, देन ही हैमर्ड इट इनटू शेप बिफोर इट कूल्ड. और वो क्या करता था ब्लैक स्मिथ की, उसके बाद उसको वो हथौड़े से पीटना शुरू कर देता था जब तक कि वो ठंडी हो. इससे पहले उसको, जब वो गर्म ही गर्म होती थी और लाल होती थी, तो उसको पीट के उसको फ्लैट कर देता था चपटा, तो वो सोड बन जाती थी, तलवार बन जाती थी. ब्लैक स्मिथ वर्क विद टोंग्स, टोंग कहते हैं चिमटे को, एंड हैमर्स, एंड यूज मेटल फाइल्स टू स्मूथ ऑफ एनी रफ एजेस फ्रॉम द फिनिश्ड सोड. और जो सोड बनाते थे उसमें अगर जो कुछ वो जो होते थे किनारे, अगर उसके खुदरे होते थे, जैसे कहते थे ना रफ होते थे, तो उसको वो फाइल्स माने की रेती जिसको बोलते हैं, उससे घिस के उसको ठीक कर लेते थे, उसको स्ट्रॉन्ग बना देते थे. और वो दे यूज़ टू वर्क विद द टोंग्स एंड हैमर्स. हथौड़े का यूज़ करते थे उसको पीटने के लिए, और टोंग्स बने चिमटा जो गर्म में से उसको निकालने के लिए. ठीक है ना. वी यूज़ ऑल्सो इन द होम्स ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जांपल योर मदर और सम लेडी इन योर हाउस जब ये रोटी बनाती है तो वी यूज़ टोंग्स, है ना, चिमटा को इस्तेमाल करते हैं ना, बिकॉज वी कैन नॉट पुट आवर हैंड इन द फायर, इट विल बर्न. तो टोंग बोलते हैं चिमटे को, चिमटे का इस्तेमाल करते थे और हैमर का इस्तेमाल करते थे, उसको ठोक पीट के उसको फ्लैट करके सोड बनाने के लिए, चपटी तलवार बनाने के लिए. और जिससे पहले कि वो ठंडी हो उसको पीट के फ्लैट कर देते थे लोहे को, तो वो फ्लैट हो जाती थी. जब वो कूल होती थी वो फ्लैट शेप में रह जाती थी. और उसके एजेस अगर रफ होते थे तो उसको रेती से घिस के उसका खुदरापन हटा देते थे और वो स्मूथ हो जाती थी और शार्प हो जाती थी. So children, I think this must be the end of this part. Now I am finishing, because rest of the part we will do in the next class. Thank you.